سرگودا میں فیسکو رورل سب ڈویژن کا لائن سپرنٹینڈنٹ اور اسسٹنٹ لائن مین رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ وابڈا ملازمین کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں سرگودا سے، جہاں فیسکو رورل سب ڈویژن کا لائن سپرنٹینڈنٹ اور اسسٹنٹ لائن مین رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ وابڈا ملازمین کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مزید اسی پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے محمد حنیف کلیار سے۔ جی حنیف، بتائیے گا اس کارروائی کے متعلق۔ جی بالکل، گزشتہ شام 5 بجے ایف آئی اے حکام نے شہری حمزہ خان کی شکایت پر سول جج کی زیر نگرانی میں فیسکو سرگودا کے لائن مین اور اسسٹنٹ لائن مین سعید اور نصیر راشی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے دونوں اہلکاروں کو 10,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا، جس پر دونوں وابڈا ملازمین کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ راشی حسن نصیر اور سعید ناصر کے خلاف کارروائی کی خبر سننے کے بعد سرگودا کے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے اور ایف آئی اے حکام کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ جی بہت شکریہ محمد حنیف، آپ ہمیں سرگودا سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ صفدر آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کے تحت دوسرے روز بھی عمل درآمد جاری ہے۔ خانقاہ ڈوگرہ کے علاقوں سے بڑی تعداد میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ صفدر آباد سے مظہر ملک کی رپورٹ۔ اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد لاریب اسلم صاحبہ نے بتایا کہ دونوں تحصیلوں میں سینکڑوں مقامات سے کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں کو اٹھوا کر ڈمپنگ سائٹس تک پہنچایا گیا، جبکہ اس دوران بڑی تعداد میں شہریوں کی شکایات کا بھی ازالہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے ایام میں تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے سرگرمیوں کو مؤثر بنایا جائے گا۔ انہوں نے شہریوں سے کہا کہ وہ پلے اسٹور سے خدمت ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اگر ان کے گرد و نواح میں کسی مقام پر کوڑا کرکٹ پڑا ہے تو وزیرہ ایپ اس کی نشاندہی۔ ایک اور اہم خبر ہے سرگودا سے، جہاں محکمہ اینٹی کرپشن نے کارروائی کرتے ہوئے تھانہ اربن ایریا کے اے ایس آئی کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ اے ایس آئی نے 5,000 روپے رشوت لی۔ اینٹی کرپشن ملازمین نے پکڑ کر کارروائی شروع کر دی۔ نمائندہ سٹی نیوز محمد حنیف کلیار ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی محمد حنیف، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سرگودا کے رہائشی محمد ظفر نے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا محمد خالد مسعود فروخہ کو درخواست گزاری کہ میرے قریبی عزیز کے خلاف درخواست تھانہ اربن ایریا میں مسعود الحسن اے ایس آئی کے پاس زیر سماعت ہے اور وہ اسے بے گناہ کرنے کے لیے رشوت طلب کر رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ بھی کئی دفعہ رشوت وصول کر چکا ہے، جس پر ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودا نے محمد اکرم سرکل آفیسر اینٹی کرپشن سرگودا کو ریڈ کرنے کا حکم دیا، جس پر محمد اکرم سرکل آفیسر نے مار شفقت حسین جوڈیشنل مجسٹریٹ کی زیر نگرانی میں تھانہ اربن ایریا میں ریڈ کر کے رفاقت ورک ایس ایچ او تھانہ اربن ایریا کی موجودگی میں سرعام رشوت لیتے ہوئے ملزم مسعود الحسن اے ایس آئی سے نشان زدہ نوٹ برآمد کر کے موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔ دوران ریڈ ملزم نے رفاقت ورک ایس ایچ او اور دیگر ملزم عملہ نے ریڈنگ ٹیم کے ساتھ مزاحمت کی، جس پر ملزم مسعود الحسن اے ایس آئی اور رفاقت ورک ایس ایچ او کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری کر دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ محمد حنیف، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ افسوسناک خبر ہے ٹیپا سلطان پور سے، جہاں وہاڑی روڈ پر گڑھا موڑ کے قریب تیز رفتار مسافر بس اور کوچ میں تصادم ہو گیا ہے۔ حادثہ میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 7 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ریسکیو نے نعش اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے، جہاں زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ انتہائی افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں ٹیپا سلطان پور سے، جہاں وہاڑی روڈ پر گڑھا موڑ کے قریب تیز رفتار مسافر بس اور کوچ میں تصادم ہو گیا ہے۔ حادثہ میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 7 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ریسکیو نے نعش اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ نمائندہ سٹی نیوز عادل اسلام ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی عادل، بتائیے گا اس حادثہ کے بارے میں۔ جی بالکل، وہاڑی روڈ پر گڑھا موڑ میں تیز رفتار بس اور مسافر کوچ میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا، جبکہ 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ 7 زخمیوں میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جنہیں فوری طور پر قریبی ہاسپٹل آر ایس سی ٹیبل سلمان میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ حادثے کا شکار ہونے والی مسافر کوچ وہاڑی سے ملتان جا رہی تھی۔ جی بہت شکریہ عادل اسلام، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبر دیں آپ کو شیخوپورہ سے، جہاں میونسپل کارپوریشن ہال میں ضلع انتظامیہ کی زیر اہتمام 703 سرکاری دکانوں کی نیلامی کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ تیسرے اور آخری روز نیلامی میں تاجروں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تاجر نے اپنی دکان کو بچانے کے لیے ایک 10 فٹ کی دکان کا 1 ارب 25 کروڑ روپے کا ماہانہ کرایہ کی بولی لگا دی، جس پر سب حیران ہو کر رہ گئے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تاجر اتنا بھاری کرایہ ادا کر بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ تمام صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ سٹی نیوز محمد صاحب۔ جی محمد صاحب، بتائیے گا اس تاجر نے اتنی بھاری بولی کیوں لگائی اور آخر معاملہ کیا ہے؟
जी देखिए, शेखपुरा के ताजरों का जो नाम है वो रिचेस्ट ताजरों में शुमार होने लगा है। सरकारी दुकानों की जो बोलियां हैं वो मरहलावार मुकम्मल हो चुकी हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि बोली के मौके पर नीलामी कमेटी के अरकान एडिशनल कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद उस्मान, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर फैसल सलीम और दीगर मौजूद थे। दुकानों की नीलामी जो है किरायाजात में इजाफे के मौके पर जो है बड़ी हैरानकुन बोलियां सामने आई हैं। मेन बाजार में नवाज ली से ताल्लुक़ रखने वाले ताजर अहमद खुर्शीद चौधरी की दुकान का माहाना जो किराया है वो 22,000 रुपये था, जो बोली में जो है 1 अरब 25 करोड़ तक जा पहुंचा है। इसी तरह पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले ताजर अलहाज मौलक मोहम्मद असलम बलोच की जो दुकान है उसका किराया जो है 20,000 था, जो कि 55 लाख रुपए तक पहुंच गया है। इसी तरह शहर की दीगर अहम ताजर रहनुमाओं ने अपनी दुकानें बचाने के लिए किराए की मद में जो करोड़ों रुपए तक किराया अदा करने की बोलियां दी हैं। ज़राए के मुताबिक इन हैरानकुन और गैर मुतवक्का किरायाजात में इजाफे के बारे में आईनी माहिरीन ने बताया कि ताजरों ने महज अपनी दुकानें बचाने के लिए नामुमकिन हद तक किराए में इजाफे की जो बोलियां दी हैं, ये बाद में अपनी जमानत जो है 50,000 रुपये बताई गई है। जब्त करवा कर अजर सो नीलामी जो है शरीक होंगे, जहां वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान से मार्केट वैल्यू के मुताबिक किराया अदा करने के लिए दोबारा बोली देंगे, जो 50,000 से शुरू होकर 1 लाख रुपए तक मुमकिन तौर पर जा सकती है। शायद यही वजह है कि ताजर तंजीमों ने जो है अपना एहतजाज ख़त्म करके बोली में शिरकत का फैसला किया है, जबकि रात के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि इन दुकानों की जो नीलामियाँ हैं वो किराए में इजाफे से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को है माहाना 7 से जो 8 लाख रुपए आमदनी होगी, जो पहले 1 से 1.25 करोड़ रुपए थी। जी खबर है समुद्री से, जहां थाना सिटी के एरिया में खाविंद ने बीवी को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। मियां बीवी के दरमियान घरेलू झगड़ा बताया जा रहा है। जख्मी खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं समुद्री से, जहां थाना सिटी के एरिया में खाविंद ने बीवी को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। मियां बीवी के दरमियान घरेलू झगड़ा बताया जा रहा है। जख्मी खातून को तशवीशनाक हालत में मुतलका अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज मदनी से। जी शहबाज, बताइएगा इस वाक़या के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, समुद्री थाना सिटी के इलाका 12 मरबा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो नाचाकी हुई है। नाचाकी के बायस झगड़ा हो गया। मुबैना तौर पर शोहर शबीर की फायरिंग से 30 साला बीवी साइमा जो है वो शदीद जख्मी हो गई है। साइमा के सीने में गोली लगी है, जबकि साइमा को समुद्री सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वहां से तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद रेफर कर दिया गया है, जबकि मुबैना मुलजिम जो है वह शबीर मौका से फरार हो गया है। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुलजिम को पकड़ने के लिए जो है वो जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शहबाज मदनी, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। तहसील कोटअद्दू के इकलौते म्यूनसिपल स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन का काम ठेकेदार की गफलत के बायस 2 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सका। शहर में दीगर स्पोर्ट्स के ग्राउंड न होने की वजह से नौजवान नस्ल मंशियात और सोशल मीडिया पर गलत एक्टिविटी पर फोकस करने लगी है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल जो है वो उनका दांव पर लगा हुआ है। मजीद इसी हवाले से बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे राहिल खान से। जी राहिल खान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटअद्दू म्यूनसिपल स्टेडियम में, जो कोटअद्दू का एक वाहिद म्यूनसिपल स्टेडियम है जो बच्चों के खेलने के लिए दरकार है। वो भी अरसा दराज से टूट फूट का शिकार था। बार बार मीडिया की निशानदेही पे जो है की गई, जिसके बाद जो है मकामी MP अशरफ खान रिंद ने हुकूमत पंजाब की जानिब से इसका टेंडर पास कर दिया। हमारे साथ खिलाड़ी मौजूद हैं, आइए हम इनसे पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा CTIG न्यूज़ का, जो हमारे शहर के मसाइल जो है वो उजागर करने में पेश है। उसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ, ये स्टेडियम जो है सियासी जलसे और इंतज़ामिया की अदम तवज्जो की वजह से जो है मुकम्मल तौर पे उजड़ गया। 2019 के मिड से जो है इसका काम स्टार्ट हुआ था। अब आपके सामने 2021 का मिड चल रहा है। 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो है ये स्टेडियम के साथ जो है कब्रिस्तान है और कसीर आबादी है। जनाजा गाह ना होने की वजह से जो है जनाजे भी यहीं पे पढ़ाए जाते हैं रात के वक्त भी। तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स जो है उनका भी जो है अवेल नहीं है, वो भी इनको चाहिए कि यहाँ पे लाइट्स का जो है इंतज़ाम किया जाए। हमारी जो है मकामी MP इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब से जो है पुरजोर अपील है कि इसका जो ये तामीराती काम है ये जल्द से जल्द जो है फाइनल कराया जाए, और जो यहाँ पे लाइटिंग है उसका भी बंदोबस्त कराना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद जो खिलाड़ी हैं, शहरी, उनका कहना यही है कि इसका ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका काम तो जारी है लेकिन सुस्त रवि का शिकार है। यहाँ पर बहुत
से प्रोग्राम्स और एडजस्टमेंट कराए गए हैं, लेकिन जो है यहाँ पे सबसे बड़ा जो अहम मसला है वो स्ट्रीट लाइट का है। उनका हुकूमत पंजाब मकामी MP असिस्टेंट कमिश्नर से ये मुतालबा है कि यहाँ पर जो है इस तरफ जो नज़रसानी की जाए और उसके जो है स्ट्रीट लाइट को जो है वो बहाल किया जाए, ताकि जो है यहाँ पर रोशनी और बच्चों की एक्टिविटी और बच्चे जो है यहाँ पे खेल के अपना टाइम पास कर सकें। खबर है बिहाड़ी से, जहां मुखालिफ ने शेर मोहम्मद नामी शख्स के घर में घुसकर मुबैना फायरिंग कर दी। फायरिंग से 2 बहनों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। मुतासरीन ने बासर औबाश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं बिहाड़ी से, जहां मुखालिफ ने शेर मोहम्मद नामी शख्स के घर में घुसकर मुबैना फायरिंग कर दी। फायरिंग से 2 बहनों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। मुतासरीन ने बासर औबाश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर तहफ़्फ़ुज़ के फराहम करने की अपील कर दी। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ से। जी काशिफ, बताइएगा इस वाक़े के मुतालिक ये माजरा क्या है, क्यों इस नौजवान ने उनके घर में घुसकर फायरिंग की है? जी बिल्कुल, दिहाड़ी 9/11 के रिहायशी शम्स मुगल नामी शख्स ने एयरफोर्स के रिटायर्ड मुलाजिम शेर मोहम्मद मरहूम के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में 2 बहनों समेत एक भाई शदीद जख्मी और मुलजिम मौका से फरार हो गया। शम्स नामी ओबाश बेवा नायला की बेटी से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। इनकार पर घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में सायरा, अनम और अवैस शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और अवैस को सीरियस होने की वजह से निश्तर मुल्तान रेफर कर दिया गया है। बेवा नायला ने बताया कि शम्स के खिलाफ मुतअद्दिद बार SHO सदर महर परवेज को दरखास्तें भी दी, लेकिन कोई सुनवाई न हुई। एक हफ्ता कबल भी शम्स ने तमाम घर वालों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। शम्स मेरी बेटी सायरा से जबरदस्ती शादी करना चाहता है। कई बार थाने भी गई, लेकिन पुलिस ने बिल्कुल ताबुत नहीं किया। अगर पुलिस कार्रवाई करती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुतासरा बेवा नायला ने DPO विहाड़ी जाहिद नवाज मरवत से अपील की है कि मुलजिम शम्स को फौरी गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि वो हम पर दोबारा हमला ना कर सके। जी बरसगीर पाक व हिंद के मारूफ रूहानी बुजुर्ग हजरत सैयद महबूब आलम शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुक़द्दस श्योरकोट शहर में सालाना उर्स मुबारक के मौका पर चादर पोशी की तकरीब हुई, जिसकी सरपरस्ती सैयद जवाद रज़ा शाह गिलानी, सैयद हुसैन शाह गिलानी ने की। तकरीब में अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नुमाइंदा सिटी न्यूज़ आबिद हुसैन भट्टी वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आबिद, अपडेट कीजिएगा। बरसगीर पाक व हिंद के बुतकदों में अजान हक देने और इस्लाम की शम्मा फरोजा करने के लिए पीर सैयद महबूब आलम गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम नुमाया नजर आता है। आपका मज़ार मुक़द्दस श्योरकोट शहर में है। सालाना तकरीबात हर साल इनकाद होता है। इस वक्त मेरे साथ पीर सैयद जवादुल हसन शाह साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी आज चूँकि हज़रत पीर महबूब आलम शाह गिलानी की सालाना उर्स की तकरीब थी, आज उनकी चादर पोशी की तकरीब थी, तो हमें चाहिए कि हम औलिया कराम की जो फरमूदात हैं उन पर अमल करते हुए अपने आखिरत और दुनिया को भी जो है वो संवारना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की नेक हस्तियाँ हैं। इसलिए इनकी सीरत को जो है वो हमें फॉलो करना चाहिए और आखिरत को जो है वो दुरुस्त करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, शाह साहब का यही कहना है कि इन बुजुर्गों के फरमूदात पर अमल पैरा करके अपनी सीरत को संवार सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक अकीदतमंद भी मौजूद हैं। जी क्या कहेंगे आप? देखें जी, मैं ज़ियारती हूँ, ज़ियारत के लिए आया हूँ, तो देख के बड़ी खुशी हुई है कि सैयद महबूब आलम शाह के दरबार आलिया पे सैयदजादों ने आके चादर भी चढ़ाई है, फूलों की बारिश भी की है। तो मैं इन अल्लाह वालों की शान में इतना ही पढ़ूंगा कि आया हूँ महबूब आलम तेरे दर पे अली की मस्ती में, ऐसा लगता है कि रहता हूँ जन्नत की बस्ती में, वो डूब नहीं सकता अल्लाह की कसम, करता है सफ़र जो अल्लाह वालों की बस्ती में। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल जी, इन बुजुर्गों के फरमूदात पर अमल पैरा होकर हम मुआशरे में अमन, मोहब्बत और निखार पैदा कर सकते हैं। जी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि 15 लाख की आबादी वाले शहर कोटअदू के सरकारी अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, ना तो पीने का साफ पानी है और ना ही अद्वियात दस्तयाब है। करोड़ों की लागत से लगाए जाने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी अरसा दराज से बंद होने की वजह से अस्पताल में साफ पानी तक मुयसर नहीं। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राहिल खान से। जी राहिल खान, क्या कहना है आवाम का?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ THQ हॉस्पिटल कोटद्दू में, जहाँ पर पानी की जो है बहुत ज़्यादा किल्लत है और यहाँ पीने का साफ पानी ना मुहैया होने की वजह से यहाँ पर आने वाले मरीज़ और जो दीगर लोग हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना दरपेश है। मैं आपको अहम बात यहाँ पे ये बताता चलूँ कि मकामी MPA की जानिब से जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के इफ्तिताह तो किए जा रहे हैं, लेकिन इफ्तिताह का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वाटर फिल्ट्रेशन जो जितने भी यानी कि प्लांट लगाए गए हैं, करोड़ों रुपये की लागत से जो है ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन उनका इफ्तिताह करने के बाद जो है वो अवामुल नास के लिए ना खोला गया है। और मकामी MPA और वज़ीर आला की जानिब से जो है इन लोगों के लिए वाटर फिल्ट्रेशन साफ पानी का जो है प्लांट लगाया गया है। यहाँ पे मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ऊपर जो है मकामी MPA अशरफ खान रिंद की जो है तस्वीर भी आवेजा की गई है, जो कि हर फिल्ट्रेशन प्लांट पर लगाई जा रही है। पर इस तस्वीर लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है बिल्कुल बंद है, ना इसमें कोई काम हो रहा है और ना ही जो है यहाँ से किसी को पानी मुहैया हो रहा है। यहाँ पर जब हमारी मरीजों से या शहरियों से बात हुई है, उनका कहना ये है कि हम दूर दराज से, क्योंकि ये तहसील का THQ हॉस्पिटल है, तहसील लेवल पे इसको बहुत सारे देहात लगते हैं, लोग जो अपने मरीजों को लेकर यहाँ पर आते हैं और उनको यहाँ चेकअप कराते हैं, लेकिन गर्मी के बायस उनको पानी की जो है किल्लत का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वो यहाँ पानी के पीने के लिए यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर लगे हुए ताले जो हैं उनके लिए अजाब बन जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ उनका यही कहना है कि MS साहब और इसके अलावा जो है AC असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू, उसके अलावा मुंतखब नुमाइंदगान MPA जो है, खासतौर पर MPA अशरफ खान रिंद से ये गुजारिश है कि इनका जो इफ्तिताह किया गया है बहरहाल जो इनको खोला जाए, ताकि यहाँ से जो जितने मरीज हैं, जो लोग यहाँ पे गर्मी में आते हैं, उनको साफ पानी फराहम किया जा सके। जी मामू कांजन में भी 28 मई यौम तकबीर के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA चौधरी सफदर शाकिर के डेरा पर तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। मामू कांजन से ज़िशान मारिद की रिपोर्ट। 28 मई यौम तकबीर के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA PP 104 चौधरी सफदर शाकिर के डेरे पर तकरीब का इनकाद हुआ। तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और केक भी काटा गया। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी सफदर शाकिर का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज शरीफ ने इस पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा तारीखी काम किया है जो कि आने वाले नस्लें भी याद रखेंगी और तारीख भी इसको सुनहरी हरूफ में लिखेगी। डेरा गाजी खान से आपको खबर दें, जहां पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियों समेत 300 से ज्यादा पुलिस एहलकारान ऑपरेशन में शरीक हैं। ऑपरेशन करके लादी गैंग की बर्बरियत का खात्मा किया जा रहा है। नुमाइंदा सिटी न्यूज शेख इखलाक अहमद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी शेख इखलाक, बताइएगा इस ऑपरेशन के बारे में। जी बिल्कुल, DPO उमर सईद मलिक की ज़ेर कमान लारी गैंग के खिलाफ पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का अंतरे पहाड़ ट्राइबल एरिया में सर्च ऑपरेशन जारी। बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियों समेत 300 से ज्यादा पुलिस एहलकारों सर्च ऑपरेशन में शरीक। पंजाब पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुश्तरका ऑपरेशन से दहशत की अलामत लारी गैंग के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए बर्बरियत का खात्मा किया जा रहा है। रेंजर पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल राना की हिदायत पर कानून नाफिज बालादस्ती को यकीन बनाया जा रहा है। DPO उमर सईद मलिक की इस सर्च ऑपरेशन को खुद लीड कर रहे हैं। DPO ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आला पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इनाम गनी की खसूसी हिदायत पर अवामुल नास के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शेख इखलाक, आप हमें डेरा गाजी खान से अपडेट कर रहे थे। खबर दें आपको जंग से, जहां उजरतों में इजाफा न होने और सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के खात्मे के खिलाफ मजदूरों ने 7 जून को जंग में एहतजाजी धरने की कॉल दे दी। लेबर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन बाबा लतीफ अंसारी और जिले सदर चौधरी तनवीर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अयूब चौक तक DC ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकालने और मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा कार पंजाब असम्बली तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। आम खबर है सियालकोट से, जहां पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डकैती और राजधानी की वारदातों में मुलविस 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान से नाजायज असला, मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद कर ली गई है। आम खबर आपको दे रहे हैं सियालकोट से, जहां पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डकैती और राजधानी की वारदातों में मुलविस 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान से नाजायज असला, मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान इलाका भर के लिए खौफ की अलामत बने हुए थे। ब्यूरो चीफ सियालकोट मियां इलियास हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मियां इलियास, बताइएगा पुलिस की इस कार्रवाई के मुतल्लिक। DPO सियालकोट अब्दुल गफ्फार किसरानी और DSP सिटी राणा नदीम तारक की खसूसी हदायत पर SHO थाना सिविल लाइन तहसीन मोहसन ने डकैती और राजधानी की वारदातों में मुलव्वस 3 रुकनी गैंग अली इमरान और रहमाना को गिरफ्तार कर लिया है।
मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की 2 मोटरसाइकिलें, 3,50,000 रुपए नकदी रकम, 2 अदर मोबाइल फोन, 3 बोर पिस्टल बमा गोलियां बरामद कर ली हैं। मुलजमान ने 2 दर्जन से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजमान शहरियों को राहजानी के दौरान असला के जोर पर जमा पूंजी से महरूम कर देते थे। DPO सियालकोट अब्दुल गफार कसरानी ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने पर SHO थाना सिविल लाइन तहसीन मोहसिन और उनकी पूरी टीम को नगद इनाम और तरीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है और हदायत की है कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरज यकीनी बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया मियां इलियास, आप हमें सियालकोट से अपडेट करे थे। पूरे मुल्क की तरह डिजकोट में भी यौम तकबीर निहायत जोश व खरोश से मनाया गया। यौम तकबीर के सिलसिला में एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में यौम तकबीर की मुनासबत से केक भी काटा गया। डिजकोट से आबिद हुसैन। सियासी रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज चौधरी साजिद वाला और मरूफ समाजी शख्सियत चौधरी शाह जमील कसाना के शाहीन मीडिया प्रेस क्लब डिजकोट में आमद। दोनों रहनुमाओं का शाहीन मीडिया प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान ने पुरतबाक इस्तकबाल किया और यौम तकबीर के हवाले से इसी दिन की याद को ताज़ा करने के लिए केक भी काटा, उम्र की सलामती के लिए दुआएं भी की। और आज हम इस पोजीशन में हैं इसी वजह से कि पाकिस्तान की एटमी ताकत बना था और हमारी तरफ तो मेरी आंख से नहीं देख सकता था। अली दुश्मन पहली आंख से नहीं देख सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अदारे, हमारी हुकूमत, वहाँ कोई भी हुकूमत हो, हम हुकूमत वक्त के साथ हैं, अपने अदारों के साथ हैं इंशाअल्लाह। वैसे तो दुश्मन को हम जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार होते हैं, लेकिन 28 मई दुश्मन कुव्वतों को रुलाने के लिए काफी है। कैमरामैन नईम जोजा के साथ आबिद हुसैन, सिटी HD न्यूज़ डिजकोट। कोटा में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलिक आसिफ अमान की जानिब से MNA सदाकत अली अब्बासी, MPA राजा सगीर अहमद के एजाज में तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें अहले इलाके की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मलिक हसन की रिपोर्ट। कोटा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलिक आसिफ अवान की जानिब से MNA सदाकत अली अब्बासी, MPA राजा सगीर अहमद, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोटा सिटी राजा वहीद अहमद खान के एजाज में छन्नी अवान के मुकाम पर इस्तकबालिया में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस्तकबालिया गुज़िश्ता माह MPA राजा सगीर अहमद, MNA सदाकत अली अब्बासी की जानिब से दी जाने वाली ग्रांट की खुशी में दिया गया। इस्तकबालिया में सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग नासर नज़ीर सत्ती, सदर तंजीम अल अवान मलक उमैर मंसूर, साबिक वाइस चेयरमैन मलक बनारस यूथ कौंसिल मलक उस्मान मानी और दीगर अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर MNA सदाकत अली अब्बासी, MPA राजा सगीर अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इंशाअल्लाह जल्द छन्नी अवान की आवाम को वाटर सप्लाई जैसे मंसूबे दिए जाएंगे और बरास्ता छन्नी डोलियां के साथ पुल तमीर करके रोड को तमीर किया जाएगा। और फ्रॉड की सरपरस्ती कौन कर रहे थे, मैं लाइव टीवी पे कह रहा हूँ, अगर गलत हो मुझे अदालत में ले जाओ। इस फ्रॉड की सरपरस्ती शायद खान अब्बासी साहब करे। वो फ्रॉड क्या था? पिंडी कोटा रोड सारे ही बताई ना। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरा नाम भी सदाकत है, मैं इस नाम का लिहाज रखूंगा। अगर गलत हो मुझे चौक में लटकाओ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। शायद खान अब्बासी फ्रॉड की सरपरस्ती कर रहा था।